Hello students, good morning. How are you all? So, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.1 का जो क्वेश्चन 1 था उसका जो 5th क्वेश्चन है उसमें हमने टोटल 5 क्वेश्चन मतलब A, B, C, D और E हमने कंप्लीट किए थे। आज हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 3। सो लेट स्टार्ट। What is the question? The question is, let capital L be the set of all lines in a plane and capital R be the relation in capital L defined as capital R is equals to in a curly bracket L1 comma L2 where L1 is a perpendicular to L to show that R is a symmetric but neither reflexive nor transitive. Okay students, so let's see what's happening in this example number 3. So first of all, we write the information that we have given in our question. That means here the given set capital L of all lines and the given relation capital R in capital L, capital R is equals to in a curly bracket L1 comma L2 where L1 is perpendicular to L2. So this is our relation, and for this relation we have to show that so this relation is symmetric but neither reflexive nor transitive. And so students, which is obvious. Why? Because every line is not perpendicular to itself. Okay, suppose यह एक लाइन है, ये पेन हमारी एक लाइन है, तो आपको पता चली जाएगा कि ये लाइन जो है ये पेन है, बराबर, इट सेल्फ परपेंडिकुलर तो नहीं हो सकती। ओके, समझ में आ रहा है? ये लाइन कैसे पैरेलल है, तो ये लाइन खुद से मतलब इट सेल्फ पैरेलल हो सकती है बट परपेंडिकुलर तो बराबर ना नहीं हो सकती। सो वी मे राइट फॉर रिफ्लेक्सिव for all capital L1 belongs to capital L, for all L1 where capital L1 belongs to capital L, क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे? L1 is not perpendicular to L1 or itself, therefore L1 comma L1 which is does not belongs to capital R, therefore R is not reflexive. So now for second relation, that means for symmetric. So what is the condition for symmetric? और यहाँ पे हमें क्वेश्चन में प्रूफ करना है, प्रूफ करने को बोला है, शो दैट बोला है। सो ऑब्वियसली चलो कैसे शो दैट आएगा? सो ये हम ले लेते हैं, सपोज ये आपका L1 है, लाइन L1, ओके, और ये लाइन L2 है। समझ में आ रहा है? सबसे पहले हम हमारी जो कंडीशन है वो हम सपोज कर लेते हैं। सबसे पहली कंडीशन, फॉर ऑल L1 comma L2 belongs to capital L, let L1 comma L2 which is belongs to capital R। इसका मीनिंग क्या है? हमें क्वेश्चन में दिया है L1 is perpendicular to L2, L1 is perpendicular to L2, so that implies, अभी यहाँ पे देखो L1 is perpendicular to L2 है, ओके। सपोज इसको मैं ऐसे शिफ्ट कर देता हूँ ये पेज को, तो क्या दिख रहा है? L2 is perpendicular to L1 दिख रहा है, बराबर ना? तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं L2 is perpendicular to L1। इसका मीनिंग क्या होगा? L2 comma L1 which is belongs to capital R, therefore R is सिमेट्रिक, बराबर ना? ये हमारा L1 है और ये हमारा L2 है, दोनों एक दूसरे से कैसे परपेंडिकुलर है, बराबर ना?
अगर इसको हम ऐसे रोटेट कर देंगे तो क्या मिलेगा आपको, L2 इज परपेंडिकुलर टू L1 मिल जाएगा, बराबर ना। सो द रिलेशन कैपिटल R इज अ सिमेट्रिक। नाउ फाइनली फॉर transitive, okay, for all L1 comma L2 comma L3 which is belongs to capital L, let L1 comma L2 belongs to capital R and L2 comma L3 belongs to capital R। दोनों का मीनिंग क्या होगा, L1 is perpendicular to L2 and L2 is perpendicular to L3, बराबर ना। सो दैट इम्प्लाइज हमें क्या मिलेगा, इसका फिगर हम अगर देखना चाहेंगे तो हमें कैसा मिलेगा। सपोज ये आपका L1 है, बराबर, ये आपका ओके, दिस इज योर L1, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 बोला है, तो ऑब्वियसली आपका L2 हो जाएगा, ओके। और L2 किसके साथ परपेंडिकुलर है, L2 इज परपेंडिकुलर टू L3, सो L2 की लाइन ऐसी है तो L3 की लाइन कैसी होगी, ऑब्वियसली परपेंडिकुलर टू L3, दैट मीन्स ऐसी होगी, बराबर ना। तो हम अगर ड्रॉ करना चाहेंगे तो L3 कैसा मिलेगा, यही मिलेगा, समझ में आ रहा है। L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, L2 इज परपेंडिकुलर टू L3, दैट मीन्स वी मे राइट और यू कैन सी दैट इन अ फिगर दैट L1 इज parallel to L3, understand, L1 is parallel to L3, you can see in figure, समझ में आ रहा ना। L1 is perpendicular to L2, L2 is perpendicular to L3, that means we may conclude that L1 is parallel to L2, समझ में आ रहा ना। So therefore L1 comma L3 which is does not belongs to capital R, therefore R is not transitive, बराबर ना, क्योंकि L1 L2 के साथ परपेंडिकुलर है और L2 L3 के साथ परपेंडिकुलर, तो इनडायरेक्टली हमें क्या मिलेगा, L1 और L2 पैरेलल मिलेगा, L1 और L3 हमें पैरेलल मिलेगा। सो वी मे फाइनल कंक्लूड दैट द गिवन रिलेशन R इज नॉट रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड नॉट ट्रांजिटिव। सो हमें क्या शो दैट करने को बोला था, यही ना, डन, ओके। ओके, सो द नेक्स्ट इज एग्जाम्पल नंबर 3। ओके, ये भी हमें शो दैट, मतलब ये भी हमें प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, शो दैट रिलेशन कैपिटल आर इन द सेट 1 2 3। यहाँ पे आपने एक बात ऑब्जर्व की होगी स्टूडेंट्स, दैट द गिवन सेट जो है उसका नाम नहीं है यहाँ पे, है ना, कौन सा सेट है वो हमें नहीं दिया है, मतलब सेट में कितने एलिमेंट्स है वो दिए है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये सेट जो भी है उसको हम सपोज कर लेंगे, डन। ओके, सो सेट 1 2 3 गिवन बाय कैपिटल आर इज इक्वल्स टू इन कर्ली ब्रैकेट 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2, 2, 3 is reflexive but neither symmetric nor transitive, हमें प्रूफ करना है, डन। चलो तो प्रूफ कर देते हैं। सबसे पहले आंसर में हमें क्या करना है, यहाँ पे सेट जो भी सेट का नाम है, बराबर ना, वो हमें क्वेश्चन में नहीं दिया, तो उसको सबसे पहले उसका हमें क्या करना है, नामकरण करना है। सबसे पहले हम फुई, जो हमारी फुई है उसका काम करना है। सो लेट the given set capital A is equals to 1, 2 and 3 and the given relation capital R on capital A, R is equals to in a curly bracket 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2, 2, 3। सो अब तक हमने क्वेश्चन में कैसे रिलेशन देखे, हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दिए जाते थे, उसको हम रोस्टर में कन्वर्ट करते थे। ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ऐसा है जिसको हमें ऑलरेडी रोस्टर फॉर्म में ही दिया है, वी हैव गिवन इन अ रोस्टर फॉर्म। सो लेट चेक। सबसे पहले हम टाइटल दे देते हैं फॉर reflexive. So what is the condition for reflexive? Reflexive it depends on which is depends on the given set. हमारे सेट में कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है, बराबर ना, हमारे
सेट में कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है, ओके, डिपेंड उस पे करता है। तो आप देख सकते हैं हमारे सेट में 3 एलिमेंट्स है और वो तीनों के तीनों एलिमेंट्स है 1 2 3। सो द रिफ्लेक्स ऑफ 1 2 3 मस्ट प्रेजेंट इन कैपिटल आर। तो आप देख सकते हैं 1 1 है, 2 2 है और 3 3 है। इसका मतलब क्या है, हमारा रिफ्लेक्सिव का कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है। तो हम जनरली लिख देते हैं फॉर ऑल एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल ए, x comma x which is belongs to capital R, therefore R is reflexive. Done. चलो अब हम बात करते हैं फॉर सिमेट्रिक। ओके, सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो आपको पता ही होगा 1 1 2 2 और 3 3 के लिए तो ये हमारा जो रिफ्लेक्ट सिमेट्रिक का जो कंडीशन वो सेटिस्फाई करेगा, बिकॉज लेट 1 1 देन 1 1 2 2 देन 2 2 3 3 देन 3 3। ओके, सो नाउ हम चेक करेंगे 1 2 के लिए। लेट 1 2 बिलोंग्स टू आर, देन वी हैव टू चेक दैट 2 1 इज प्रेजेंट इन कैपिटल आर और नॉट। मतलब 1 2 हम कंडीशन सपोज कर लेते हैं और 2 1 हमारे आर में है या नहीं वो हम चेक करेंगे। तो आपको पता चल गया होगा कि अगर हम 1 2 सपोज करेंगे हमारी फर्स्ट कंडीशन, देन सेकंड कंडीशन दैट मीन्स 2 1 वो हमारे कैपिटल आर में प्रेजेंट नहीं है। दैट मीन्स द गिवन रिलेशन कैपिटल आर इज नॉट सिमेट्रिक। सो फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू कैपिटल ए, लेट 1 2 बिलोंग्स टू कैपिटल आर बट 2 1 which is does not belongs to capital R, therefore R is not symmetric. Then okay, and the last one which is for ट्रांजिटिव। चलो ट्रांजिटिव के लिए हमें ऐसे एलिमेंट्स सिलेक्ट करने होंगे जिसमें हमारा y का जो प्लेस है वो सेम होना चाहिए। तो हमें ये जो फर्स्ट थ्री हमारे जो पेयर्स है उसके लिए हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि 1 1 एंड 1 1 देन 1 1, 2 2 एंड 2 2 देन 2 2, 3 3 3 3 एंड 3 3। तो ये फर्स्ट 3 पेयर्स के लिए तो हमारा ट्रांजिटिव सेटिस्फाई करेगा। बट अब हम बात करते हैं आगे की। चलो तो 1 2 लेते हैं, 2 3 जिसमें y कॉमन है, दिख रहा है ना, y सेम है 1 2 एंड 2 3। दैट मीन्स हमें चेक करना है 1 3 हमारे कैपिटल आर में है या नहीं। तो आप देख सकते हैं 1 3 डज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल आर। सो यहाँ पे लिखते हैं कि फॉर ऑल x y z बिलोंग्स टू कैपिटल ए, लेट 1 2 बिलोंग्स टू कैपिटल आर एंड 2 3 which is belongs to capital R, but 1 3 which is does not belongs to capital R, therefore R is not transitive. That's it. हमें क्या शो दैट करना था कि हमारा जो रिलेशन कैपिटल है रिफ्लेक्सिव है बट सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं है, बराबर ना। ये देखो रिफ्लेक्सिव बट नाइदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव आ गया, रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक नहीं हुआ और ट्रांजिटिव भी नहीं हुआ। समझ में आ रहा? हमने कौन से पेयर ले लिए 1 2 एंड 2 3 हमने ले लिए, बराबर ना, बिलोंग्स टू कैपिटल आर में से ले लिए। आप देख सकते हैं वाई का प्लेस सेम है, बराबर ना। तो अब हमें चेक करना था 1 3 के लिए। तो आप देख सकते हैं 1 3 जो कैपिटल आर में प्रेजेंट नहीं है, दैट्स व्हाई द गिवन रिलेशन आर इज नॉट ट्रांजिटिव। डन। नाउ द नेक्स्ट सम इज एक्सरसाइज 1.1 का थर्ड सम है। चेक वेदर द रिलेशन capital R defined in the set 1 2 3 4 5 6 as R is equals to a comma B, where B is equals to a plus 1 is reflexive, symmetric और transitive। मतलब हमें ये जो रिलेशन है वो चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं, बराबर ना। और हमें जो सेट दिया गया है वो कौन सा है 1 2 3 4 5 6। अगेन जो सेट है उसका नाम नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो सेट दिया है उसको हम सपोज कर लेते हैं। सो आंसर लेट the given set capital A is equals to in a curly bracket 1 2 3 4 5 and 6, and the given set capital R on capital A
R is equals to, in a curly bracket, A comma B, where B is equals to A plus 1. So first of all, we have to convert the given set builder form into roster form. So we have to put the value of small a from our given set capital A one by one. Okay, so if we put A is equals to 1, okay, we get B is equals to 2. If we put A is equals to 2, we get A B is equals to 3. Similarly, A is equals to 3, B is equals to 4, 4, 5, 5, 6. चलो अभी हम 6 पुट करेंगे तो हमें B इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, 7 मिलेगा. ओके, विच इज नॉट पॉसिबल. वाई? बिकॉज 7 is out of set capital A. So that's why the possible pairs are these. Which pairs? 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6. That's it. Okay. 6, 7 क्यों नहीं आएगा? Because so if we put A is equals to 6, then we get the value of B is 7, and 7 is out of set. That's why we do not include our 6, 7 pair. Okay. So for this relation, we may check our reflexive symmetry and transitivity. So first I titled for reflexive. So what is the condition for reflexive? Reflexive depends on the set capital A, and how many members are present in capital A? There are 6 members present in capital A. So we must present 6 reflex in capital R. That means 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5 and 6, 6. So student, it is observed. You can observe that there is no reflex present in capital R. मतलब हमें 6 रिफ्लेक्स हमारे आर में प्रेजेंट चाहिए. बट आप देख सकते हैं 6 की बात करेंगे, बट 6 तो छोड़ो, एक भी रिफ्लेक्स हमारे आर में प्रेजेंट नहीं है. सो फॉर ऑल स्मॉल ए वेयर स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल A comma A which is does not belongs to capital R, therefore R is not reflexive. ओके, सो नाउ वी चेक. यहाँ पे हमने जनरली लिख दिया बराबर है, क्योंकि हम 6 एलिमेंट्स के लिए 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5 इंडिविजुअली हम डज नॉट बिलोंग्स टू आर लिखेंगे. उससे बेटर होगा कि हम जनरली लिख देते हैं. यहाँ पे फॉर ऑल ए, फॉर ऑल स्मॉल ए का मतलब क्या है, सभी ए. किसके? तो कैपिटल ए के, बराबर ना. सेट कैपिटल ए के मेंबर्स के लिए हमने ए कॉमा है, मतलब जनरली हमने लिख दिया. सो नाउ फॉर सिमेट्रिक. For all A, B belongs to capital A, let. चलो अगर सब हम कोई कंडीशन, कोई एक पैर हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं. सपोज 1, 2 बिलोंग्स टू आर सपोज कर लेते हैं. तो हमें क्या चेक करना है, 2, 1 हमारे आर में है या नहीं. चलो हमने 1, 2 सपोज कर लिया, बराबर. तो अब हमें चेक करना है 2, 1 हमारे आर में है या नहीं. तो A 1, 2 बिलोंग्स टू कैपिटल आर, बट क्या नहीं है. So 2, 1 which is does not belongs to capital R. Therefore R is not symmetric. Okay. And similarly, finally, for transitive. Okay. So for all A, B, C belongs to capital A. तो दो कंडीशन हम ले लेते हैं, और ऐसी कंडीशन लेनी है जिसमें हमारा y कॉमन होगा. तो हम क्या करेंगे, 1, 2, 2, 3 ले लेते हैं. लेट 1, 2 बिलोंग्स टू कैपिटल आर एंड 2, 3 बिलोंग्स टू कैपिटल आर. अब हमें कौन सा चेक करना है पेयर, 1, 3 के लिए हमें चेक करना है, बराबर ना. हमने x, y एंड y, z हमने सपोज कर लिया है. अब हमें चेक करना है x, z. दैट मीन्स 1, 3 के लिए हमें हमारे आर में है या नहीं, वो हमें चेक करना है. तो देख लेते हैं 1, 3 यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है. सो फाइनली वी कंक्लूड दैट बट 1, 3 which is does not belongs to capital R, therefore R is not transitive. So जो हमें मेन हमारा रिलेशन दिया गया था, कैपिटल R is equals to A, B where B is equals to A plus 1 is the reflexive, symmetric और transitive हमें चेक करना था. तो सबसे पहला हमें क्या किया, हमारा जो सेट था उसको हमने एक प्रॉपर नेम दे दिया. मतलब
कि कैपिटल ए हमने सपोज कर लिया। उसके बाद हमारा जो रिलेशन है, जो हमारा सेट बिल्डर फॉर्म था, उसको हमने कन्वर्ट कर दिया रोस्टर फॉर्म में। देन वी गेट कैपिटल आर इज इक्वल्स टू दिस टाइप ऑफ फॉर्म, ओके, इन विच ऑल आर पेयर्स प्रेजेंट and the pairs 1 2 2 3 3 4 5 6 and 6 4 5 and 5 6. Why we do not take 6 7? Because 7 is out of set. So finally we get roster form of capital R is this form. So ये फॉर्म के लिए हमें, मतलब ये कैपिटल आर के लिए हमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों के तीनों रिलेशन हमें चेक करने थे। तो यू कैन ऑब्जर्व दैट स्टूडेंट्स देयर इज नो रिफ्लेक्स, ओके, देयर इज नो रिफ्लेक्स इन अ कैपिटल आर, मतलब 6 मेंबर के रिफ्लेक्स हमारे कैपिटल आर में प्रेजेंट नहीं है। सो फाइनल वी कंक्लूड दैट द गिवन रिलेशन आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमिलरली 1,2 हमने ले लिया, 2,1 हमारे आर में नहीं है, सो नॉट सिमेट्रिक। हमने 1,2 2,3 ले लिए, हमें चेक करना था 1,3 के लिए, और वो भी डज नॉट बिलोंग्स टू आर है, दैट्स व्हाई आर इज नॉट ट्रांजिटिव। डन। सो जो हमने अभी प्रीवियस सम किया, प्रीवियस के प्रीवियस बराबर सेम ऐसा एक सम है हमारे पास, एक्सरसाइज 1.1 का 6th सम है। शो दैट द रिलेशन कैपिटल आर इन द सेट 1 2 3। यहाँ पे भी हमें जो सेट है उसका नाम क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, तो सबसे पहले हमारा जो सेट है उसको हम सपोज कर लेते हैं, उसका नाम हम सपोज कर लेंगे कैपिटल ए। गिवन बाय आर इज इक्वल टू 1,2 2,1 इज अ सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव, बराबर ना। रिलेशन आपको देखते ही पता चल गया होगा कि हमारा जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है। रिफ्लेक्स होगा, क्यों सॉरी रिफ्लेक्स नहीं है और ट्रांजिटिव नहीं है, सिमेट्रिक होगा, बिकॉज अगर हम 1,2 सपोज करेंगे तो 2,1 उसमें है, बराबर ना। दैट्स इट, आपको समझ में आ गया। सिर्फ हमें यहाँ पे जो प्रोसेस है हमारी लिखने वाली वो हम यहाँ पे कंप्लीट कर देते हैं। सो लेट द गिवन सेट कैपिटल ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 and the given relation capital R on capital A R is equals to curly bracket 1,2 2,1। चलो ये रिलेशन के लिए हमें क्या प्रूफ करना है, सिमेट्रिक है बट रिफ्लेक्स और ट्रांजिटिव नहीं है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे टाइटल दे देते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव। सो ऑब्वियस है कि हमारे सेट में 3 मेंबर है, तो तीनों के तीनों मेंबर के रिफ्लेक्स हमारे आर में मस्ट प्रेजेंट होने चाहिए, बट एक भी प्रेजेंट नहीं है। सो वी राइट जनरली फॉर ऑल स्मॉल एक्स वेयर स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल ए, x comma x which is does not belongs to capital R, therefore R is not reflexive. Okay, so similarly we may write for symmetric, और हमें सिमेट्रिक तो है ऐसा प्रूफ करना है, और आपको पता चलेगा ऑब्वियस है फॉर ऑल x comma y belongs to capital A, 1 comma 2 belongs to capital R, so that implies 2 comma 1 which is also belongs to capital R, therefore R is symmetric. And finally हमें ट्रांजिटिव नहीं है ऐसा प्रूफ करना है, so for ट्रांजिटिव, so उसके लिए for all x comma y comma z belongs to capital A, let 1 comma 2 belongs to capital R and 2 comma 1 belongs to capital R. बट हमने क्या किया, हमारे R में 2 ही मेंबर है, बराबर 2 ही पेयर से, तो दोनों पेयर में क्या है, हमने 1 comma 2 2 comma 1 हमने सपोज कर लिया, और उसमें देख सकते हैं y कॉमन है, y सेम है, बराबर y का जो प्लेस है वो सेम है। अब हमें क्या चेक करना है, 1 comma 1 हमारे बिलोंग्स टू R है या नहीं, तो आप देख सकते हैं 1 comma 1 हमारे R में प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ लिख सकते हैं बट 1 comma 1 डज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल R, देयरफॉर R is not transitive. That's it. क्या प्रूफ करना था, ये ना कि हमारा रिलेशन कैपिटल आर रिफ्लेक्सिव नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है, बस बट सिमेट्रिक है, तो वो हमने प्रूफ कर दिया। कैसा लगा सम, अच्छा है ना? ओके, वेरी गुड। तो एक बार ये सम भी देख लो। चलो उसके बाद हमारा नेक्स्ट है एक्सरसाइज 1.1 का 15 है, और वो हमारा एक एमसीक्यू है, बराबर ना। उसको मैंने क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दिया है, बराबर। तो लेट कैपिटल आर बी द रिलेशन इन द सेट 1 2 3 4 गिवन बाय आर इज इक्वल टू 1 2 2 2 1 1 4 4
1 3 3 3 3 2 देन आर इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव क्वेश्चन मार्क। ये हमारा एमसीक्यू है और एमसीक्यू को मैंने क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दिया है बराबर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें तीनों के तीनों रिलेशन चेक करेंगे और उसके बाद हम फाइनलाइज करेंगे कि हमारा रिलेशन कैपिटल आर क्या है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव, तीनों में से कौन सा है, और उस अकॉर्डिंग टू दैट आंसर वी मे राइट अवर फाइनल करेक्ट ऑप्शन। ओके, वो करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना, आपके पास बुक होगी उसमें आप इसके 4 ऑप्शन कौन से वो आप देख लेना। ओके, सो आंसर में सबसे पहले हम क्या करेंगे, हियर और लेट द गिवन set capital A is equals to 1 2 3 and 4 and the given relation capital R on capital A R is equals to curly bracket 1 comma 2 2 comma 2 1 comma 1 4 comma 4 1 comma 3 3 comma 3 एंड 3 कॉमा 2। चलो ये रिलेशन के लिए हमें चेक करना है रिफ्लेक्सिव फॉर रिफ्लेक्सिव। चलो रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि हमारा जो सेट कैपिटल है उसमें 4 मेंबर्स है, तो 4 मेंबर्स के रिफ्लेक्स हमारे कैपिटल आर में है या नहीं वो हम चेक करेंगे। तो 4 मेंबर्स है, 4 मेंबर्स मतलब 1 1 2 3 4, तो सभी के सब रिफ्लेक्स हमारे कैपिटल आर में है या नहीं चेक करेंगे। सबसे पहले 1 1 है, यस है, 2 2 है, वेरी गुड, 3 3 है, ओके ये हमारा 3 3 है, और 4 4 वो भी हमारा यहाँ पे प्रेजेंट है। सो इसका मतलब क्या होगा, हमारा जो रिलेशन है कैपिटल आर उसको हम जनरली लिख देते हैं फॉर ऑल स्मॉल एक्स वेयर स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल ए एक्स कॉमा एक्स which is belongs to capital R, therefore R is reflexive। चलो अभी हम बात करते हैं फॉर सिमेट्रिक। सो फॉर ऑल x, y belongs to capital A। चलो सिमेट्रिक की बात करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 1 2 2 3 3 4 4 का तो रिफ्लेक्स आएगा ही। अब हम बात करते हैं 1 2 की, तो 2 1 इसमें प्रेजेंट नहीं है, ले पहला ही मेंबर हमारा फेल गया। सो यहाँ पे हम लिख देते हैं लेट 1 2 बिलोंग्स टू कैपिटल आर बट 2 1 विच इज डज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल आर, देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक। एंड फाइनली फॉर ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव से पहले मैं एक रिफ्लेक्सिव की एक सिमेट्रिक की एक बात बोल दूं आपको कि अगर आपका सिमेट्रिक सपोज जितने भी पॉसिबल है बराबर ना, सभी के लिए सिमेट्रिक सेटिस्फाई कर रहा है, पर सपोज एक के लिए नहीं कर रहा है बराबर ना। ओके चलो 1 1 2 हमने ले लिया, 2 1 है, 3 1 ले लिया, 1 3 है, सब सपोज सभी के सभी मेंबर के सिमेट्रिक हमारे आर में प्रेजेंट है, बट एकाध जो भी कोई एक ऐसा मेंबर हमें मिल गया कि जिसका सिमेट्रिक पॉसिबल नहीं होगा बराबर ना, कोई एक मेंबर भी। इसका मतलब कहने का मीनिंग क्या है कि अगर 99 के लिए सिमेट्रिक पॉसिबल हो गया और एक के लिए नहीं हो गया, तो इसका मतलब क्या होगा, तो हमारा जो आर है वो सिमेट्रिक नहीं है। 100 है, 100 मतलब 100 मेंबर्स है सपोज बराबर, तो 100 मेंबर्स के सिमेट्रिक कंपलसरी है, सेटिस्फाई करने ही चाहिए, होने ही चाहिए बराबर। चलो तो ट्रांजिटिव के लिए हम 2 ऐसे मेंबर चूज कर लेते हैं, और ट्रांजिटिव की बात करेंगे तो 1 1 2 2 3 3 4 4 ये 4 मेंबर के लिए तो हमारा जो ट्रांजिटिव है वो सेटिस्फाई करेगा। अभी मैंने प्रीवियस सम में आपको समझाया था बराबर ना, एक्सप्लेन किया था। चलो तो ऐसे हम 2 मेंबर हमारे आर में से सिलेक्ट कर लेते हैं जिसका वाई हमारा सेम हो बराबर। चलो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं 1 2 2 2 1 2। ओके सो 1 2 इसके बाद कोई है, सो 2 2 वो भी नहीं आएगा, तो 1 3 3 3 1 3 1 3 3 2 1 2 प्रेजेंट है, डन। फिर कोई और पॉसिबल होगा, कोई और 3 3 3 2 3 2 हो गया। चलो वेरी गुड। सो इसका मतलब हम फाइनल कंक्लूजन क्या लगा सकते हैं कि हमारा जो रिलेशन है बराबर ना, 1 1 1 2 1 2 डन, ये भी हो गया। अभी कोई बाकी रह जा, कोई भी बाकी रहना नहीं चाहिए बराबर ना स्टूडेंट, सभी के सभी
मेंबर हमारे आ जाने चाहिए। तो बस हो गया। इसका मतलब क्या होगा, जितने भी हमारे पॉसिबल पेयर्स बन सकते थे उतने हमने बना लिए, पर एक चेक कर लेते हैं 1,1, 1,3, 1,3। चलो ये भी हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा जो रिलेशन कैपिटल आ रहा है वो ट्रांजिटिव, मतलब मैक्सिमम पॉसिबल जितने ट्रांजिटिव पॉसिबल हो सकते थे हमने सभी के सभी बना डाले और बन भी गए, बराबर ना। हमने एक्स वाई और वाई जेड ले लिया और एक्स जेड हमने प्रूव कर दिया। तो हम यहाँ पे जनरली लिख देते हैं फॉर ऑल एक्स वाई एंड जेड बिलोंग्स टू कैपिटल ए, लेट x comma y belongs to capital R and y comma z which is belongs to capital R. Therefore, or that implies x comma z which is also belongs to capital R. Therefore, R is ट्रांजिटिव। एक बार हम वेरीफाई कर लेते हैं हमारा आंसर, बराबर ना। ओके, हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर आंसर में क्या है, यहाँ पे आंसर में है ऑप्शन नंबर बी है। और बी ऑप्शन क्या है, आर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। ओके, हो गया ना, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, प्रूफ हो गया। मतलब हमारा जो ऑप्शन सेकंड ऑप्शन है वो हमारा वहाँ आ गया। ओके, सो आज हमने टोटल 5 सम्स कंप्लीट कर दिया और ये एक एमसीक्यू के साथ हमने 5 सम्स कंप्लीट कर दिए, बराबर स्टूडेंट्स। एंड आई होप कि आपको अभी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में कोई कंफ्यूजन नहीं रह गया होगा एंड इजी आपको अभी इजीली समझ में आ गया होगा कि कैसे हमें चेकआउट करना है, बराबर ना। सो आज यहाँ पे हम स्टॉप करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बराबर ना। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम और 5-6 सम कंप्लीट करेंगे। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।